Good evening, everyone. Welcome to the PVLF Authors Marathon 2022. From Team Frontlist today, this is Chaitanya Arora as your moderator. And the personality we have today is Mr. Manan Bhatt. He is a veteran of the Indian Navy. He has served during the Kargil War and Operation Parakram. He has worked at the integrated headquarters of defense and the DRDO. Sir, it's a pleasure to have you with us today. Thank you, Chaitanya. Thank you, Frontlist Media. Thank you, PVLF. It's great to be here. It's a pleasure from my side also. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you for being here. So, today we'll be discussing on the ever-changing dynamics of India's foreign policy. And since you are a defense veteran, you are possibly the best person for us for literally to enlighten us on this topic. Your book recently has come up, which is based on the Balakot airstrikes. So, sir, my very first question is that coming to the Balakot airstrikes, first off, the Balakot airstrikes and the 1971 war, they are two such events in Indian history which saw a great combination and a great teamwork from all the three sectors of the defense forces. And also the fact that both of them were led by a Gurkha. So the 71 war was, of course, led by Sir Sam Manekshaw, and then Sir General Bipin Rawat in the Balakot airstrikes. So if, God forbid, if tomorrow we are to face such a situation, do you think Indian Army is already prepared for that? It's a very good question. Not only Indian Army, actually, it's a very relevant question also, because not only Indian Army, even Indian Air Force and Indian Navy, all the three services are well prepared to face any adversary in any situation. Now, let me elaborate the situations a bit deeper. For the first, let us take the example of Indian Army's operations during the 1971 war, also the 1965, also during the Kargil war. Let me not bring the surgical strikes here, because it was a para-SF operation, not a particularly army operation. So during 71 war, during the Kargil war, and also during the 65, when we were almost at the gates of Lahore, we were almost inside Pakistan, Lahore. So Indian Army has displayed exemplary leadership, planning. Everything was perfect, pitch perfect, and that is why within 13 days, when General Sam Manekshaw, when he was asked how many days will you take to win the war for us, for first he said, "I'm not prepared. Give me time." This is this much how this is the intellectualism, or he was not no yes man, General Sam Manekshaw. This is what Indian Army is all about. This is what ethos is all about. This is what also professionalism is all about in Indian Army. He said, "Give me time." He was prepared. When he prepared his forces, he went back to the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, and she asked, "Kitne din loge, General Saab?" He said, "Give me 1.5 months." और हम सभी जानते हैं कि 13 दिनों में, विदिन 13 डेज, 3 दिसंबर को जो शुरू हुआ था, 16 दिसंबर को खत्म कर दिया गया. विदिन 13 डेज it was all over for Pakistan. East Pakistan was no longer part of the Pakistan. So this is what Indian Army is capable about. और जब उनको पूछा गया कि आपने तो 1.5 महीना कहा था, आपने 13 दिन में ये कर दिखाया, तो जनरल साहब ने कहा, जनरल देन फील्ड मार्शल साम मानेकशॉ ने कहा कि अगर मैं आपको ये कहता कि मैं 15 दिन में या 13 दिन में कर दूंगा, तो आप मुझे रोज पूछते. So this is what our capability is. Yes, of course, during Kargil war, it did take some time to push back the invaders who were inside our boundaries, or the LOC, who had crossed the LOC. But it was a difficult operation. Never in the history of warfare such kind of a war on such inhibiting heights
has taken place. This is first ever war which was fought at the height of 18,000 to 20,000 feet. So it's not a small thing, that it's a big deal that an army is capable to fight even in such high altitude terrain. Now let me come back to the there was an issue with our doctrine when the 2001 Operation Parakram build-up happened, and we were not able to actually, there were no orders from the higher ups to actually charge the enemy, and the build-up lasted for almost more than a year, and a lot of hue and cry happened due to this in diplomatic circles as well as military circles, and we lost so many lives also without even firing a bullet. So to overcome this, we have something called as a cold start doctrine, which due to the lack of strategic depth of Pakistan. Strategic depth किसको कहते हैं मैं समझाऊंगा कि पाकिस्तान की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, उनकी ब्रेड्थ बहुत कम है. तो जब इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर और इन टैंडम विद इंडियन एयरफोर्स अटैकिंग द एनिमी, उनके जो इंस्टॉलेशन है उस पर अटैक होगा. हमारी आर्मर्ड कोर पाकिस्तान का जो ब्रेथ है उसको कवर करने में कुछ एक डिसीजन हुआ है कि उस इतने टाइम में हमें उसका लेंथ एंड ब्रेथ को कवर करना है. तो ये लेक ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द एनिमी लैंड है, उसको वो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड दैट इज व्हाट इंडियन आर्मी हैज प्लान्ड. और उस कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन इंटरनेशनली भी हुआ है, और हमें काउंटर करने के लिए, टू काउंटर द इंडियन आर्मी, पाकिस्तान हैज डेवलप्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स व्हिच आर क्रिटिसाइज्ड लाइक एनीथिंग. कि वो छोटे न्यूक्लियर वेपन्स, जनरली वॉरहेड्स बड़े होते हैं, दे हैव डेवलप्ड स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स टू ओवरकम दिस. नाउ लेट अस गो टू द इंडियन नेवी. 1971 में पाकिस्तान हैज वेरी वेल रियलाइज कि गनबोट डिप्लोमेसी क्या होती है. वे हम लोग बहुत ज्यादा, जैसे हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और पैराडिगम की बात कर रहे हैं, तो वी वर सो अग्रेसिव कि दो बार हमने उन पे अटैक करा. एक 4 दिसंबर को, जिसको कि विच इज सेलिब्रेटेड एज नेवी डे, और उसके 4 दिन बाद 8 दिसंबर या 7 दिसंबर को एक ऑपरेशन ट्राइडेंट और एक ऑपरेशन, ये 2 ऑपरेशन के अंदर वी वर एबल टू डेसिमेट द एंटायर नेवल कमांड, जो कराची और उसके आसपास में जो उनके पोर्ट्स थे उनको पूरा डेसिमेट कर चुके थे. तो और कराची जो है वो 15-20 दिन तक जला था. सो दिस इज व्हाट नेवी हैज बीन एबल टू डू. उसके अलावा there were blockade operations during 1971 war also, and then also during the 1999 Kargil war there were big blockade operations, जिसमें कि पाकिस्तान के पास ये हालत हो गई थी, क्योंकि they are dependent like India, they are also dependent on fuel from the Gulf countries. उनको जो, तो उसको हमने ब्लॉक कर दिया था. उनकी चाइना उनको जो मिसाइल्स के पार्ट्स भेज रहा था, ऐसा एक शिप हमने पकड़ा था. तो नेवी अग्रेसिव ऑपरेशंस, अटैकिंग द एनिमी, गनबोट डिप्लोमेसी, या फिर सबमरीन से अटैक करना, दुश्मन को डेसिमेट कर देना, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है इन 71 वॉर. 99 में व्हेन वी रैन अ ब्लॉकेड ऑपरेशन, देयर वर प्लान्स फॉर सम वेरी सिक्रेटिव ऑपरेशंस व्हिच वर नॉट taken because orders never came for the Indian Navy to fire their missiles or fire a round in anger. But there were, let me assure entire country through you, through the frontlist media, that there were certainly some very interesting preparations which were going to once again decimate Pakistan, and this were also going to be a big surprise for them. So the Navy is always ready for giving the enemy the due surprise that they deserve. Now let us get back to the Air Force. During 1971 62 war, Indian Air Force wasn't allowed to participate in the war, and it has been viewed since long. We always say that एक बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी. 65 और 71 वॉर में इंडियन एयरफोर्स हैज शोन इट्स मेटल, और जो हमारे पायलट्स थे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कहर मचा के रखा हुआ था, आप कह सकते हैं. उसके बाद मॉडर्नाइजेशन हुआ, चीजें काफी आगे बढ़ी. 99 तक पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं कि एक न्यूक्लियर नेशन बन चुका था.
और हम भी बन चुके थे। सो 99 में कारगिल वॉर में क्या हुआ कि जब हमें बोला गया कि एयरफोर्स को और आर्मी को एलओसी क्रॉस नहीं करना है, यू हैव टू रिमेन विद इन दी एलओसी एंड अटैक दी एनिमी इंस्टॉलेशंस। सो उस समय हमें खास करके इंडियन एयरफोर्स को देयर वाज अ बिग लर्निंग कि किस तरह से इनिशियल 2 दिन तक हमने जब एयर ऑपरेशंस किए, आर्मी ने कहा कि हमें क्लोज एयर सपोर्ट दीजिए, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में जहां पर्वत है और इस इन परिस्थितियों में क्लोज एयर सपोर्ट पॉसिबल नहीं था फाइटर एयरक्राफ्ट से, तो उसके लिए Mi-35 भेजा गया, which was shot down by the sadly it was shot down by the enemy। और उसके बाद में क्लोज एयर सपोर्ट की जो मांग थी वो एयरफोर्स ये कहता था, शुरू से कह रहा था कि इट वाज एन इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, ये नहीं हम कर सकते, बट दे स्टिल डिड दैट। पाकिस्तान के पास यूएस की, जो कि अफगानिस्तान से उसने बचा रखी थी, स्टिंगर मिसाइल थी, जिससे उन्होंने हमारे एक हेलीकॉप्टर को गिराया। उसके बाद में हमारे 2 एयरक्राफ्ट भी गिरे। सबसे पहला एयरक्राफ्ट हमारे उस समय स्क्वाड्रन लीडर थे नचिकेता, उनका गिरा, विच वाज सैडली एन इंसिडेंट कि उनका जो एयरक्राफ्ट था उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आया, और जिसकी वजह से व्हाइल फायरिंग साल्वो एट द एनिमी his aircraft got crashed and he became a POW while searching for squadron leader नचिकेता। उनको ढूंढने के लिए विंग कमांडर आहूजा सर का प्लेन गया, अजय आहूजा सर का, और उनको दुश्मन ने स्टिंगर से मार गिराया। अब ये इतने बड़े इंसिडेंट जब हो गए और मिग के साथ जब ये इंसिडेंट हुए, तो देयर वाज 2 दिन तक तो सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर गिरा, और ये 2 जब इंसिडेंट, फिर पहले 2 दिन में ही हमने 3 एयरक्राफ्ट खो दिए, एंड देयर वाज अ डिसीजन टेकन। और इससे पहले शायद किसी एयरफोर्स ने ऐसी हाइट्स पे और प्रोहिबिटेड हाइट से इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पे युद्ध बहुत कम लड़े गए हैं। और ऐसे में दुश्मन ने, जबकि ढलान की पिछले तरफ अपने फोर्टिफाइड बंकर्स बना रखे हों, उस पर अटैक करना इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ना ही आर्टिलरी के लिए पॉसिबल हो पा रहा था, ना ही इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन नहीं थे। तो 2 दिन तक एयर ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया गया। देन एयरफोर्स took it on their own, और उसके बाद में as they say that rest is history, मिराज को लगाया, मिराज 2000 को लगाया गया प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए। we didn't have the technique, तो लेसर गाइडेड बॉम्ब्स हमने मंगाए इजराइल से, और उसका पॉड की हेलमेट्स को, एचयूडी को मॉडिफाई किया गया, हेडक्राफ्ट को जुगाड़ लगा के मॉडिफाई किया गया। ऑफिसर्स ने वहां पे ऑन ग्राउंड वेपन ऑफिसर्स ने काम किया, एंड वी वर एबल टू अटैक द मेन सप्लाई लाइन। We were able to break the main supply line of the enemy, that was मुंथो ढालो। एक वहां से उनको पूरा टाइगर हिल से लेके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सोलोलिंग और टाइगर हिल, सबसे बड़ी तो वही पॉइंट थे। वहां पे उनको उनकी जितनी चौकियां थी, जिनके उन्होंने बंकर बना रखे थे, सैंगर बना रखे थे दुश्मन ने, वहां they were getting supplies from मुंथो ढालो, क्योंकि मुंथो ढालो एलओसी के हमारे तरफ है और उसके बाद पाकिस्तान है। तो ये सब परिस्थितियों में एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी है। चाहे आप आउट एंड आउट वॉर की बात करें, चाहे इट वाज अ 71 वॉर, चाहे 65 का आउट एंड आउट वॉर हो, जिसका एक्सपीरियंस हैज रिमेन्ड विद अस। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट सर्जिकल प्रिसीजन स्ट्राइक्स, तो वी हैव एन एग्जांपल, वो भी प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन हाई अल्टीट्यूड टेरेन। वी हैव द एग्जांपल, वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 1999 वॉर। उस समय के तो जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी सर्व कर रहे हैं। उसके बाद में हमने जब एंटी टेरर स्ट्राइक करी, सर एयर स्ट्राइक्स जो करी बालाकोट की, दैट अगेन इट वाज अ बिग एक्सपीरियंस। पहली बार ऐसा हुआ कि एंटी टेरर स्ट्राइक के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। हमने जस्ट लाइक, जैसे कि यूएस ने, सभी जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए कितना दूर तक, एबोटाबाद में वो लोग गए, अफगानिस्तान के अपने आई थिंक बगराम एयरबेस से वो लोग ने फ्लाई किया था, एंड दे वेंट सो डीप in पाकिस्तान, मेनलैंड पाकिस्तान। इंडिया ने भी वही किया, नॉट ओनली इन एलओसी विच इज ऑब्वियसली अवर लैंड। हम ये कहते हैं कि एलओसी का जो, एलओसी के पार जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का है। तो हमने एलओसी में नहीं अटैक किया, हमने अटैक किया मेनलैंड पाकिस्तान में, उनके फाटा टेरेन में, एनडब्ल्यूएफपी में, वहां पे जाके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, एनिमी लैंड्स में, वहां पे जाके हमारा जो एयर स्ट्राइक हुआ है, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक हुआ है। इट इज अ बिग थिंग। ये जो एक्सपीरियंस, उसके बाद एनिमी ने भी वापस अटैक किया। काफी लोग को ये भी नहीं पता है कि हम आफ्टर द एयर स्ट्राइक, द वेरी नेक्स्ट डे, आफ्टर अ डे, एनिमी, हमने एयर स्ट्राइक करी आई थिंक सुबह 3:30 पे। तो वो दिन को अगर छोड़ दे तो वेरी नेक्स्ट डे
very next day enemy also retaliated, which is known as Operation Swift Retort. दुश्मन ने उसको ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट नाम दिया था। 25 से 26 एयरक्राफ्ट से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था और नॉट अ सिंगल ट्री वाज इवन बेफैलन बाय देयर अटैक। वो लोग उन्हें भागना पड़ा ड्यू टू दी हमारा जो डिफेंस था, एयर डिफेंस था, वो इतना सॉलिड था। और अभिनंदन सर ने जो अटैक किया और उनका एक प्लेन F-16 मार गिराया, तो उसके बाद तो परिस्थिति ये आई कि दे हैड टू इवन उनके अपने वेपन्स को, जो वो लोग स्टैंड अलोन वेपन्स लेके आए थे, उनको गिरा के भागना पड़ा। इन परिस्थितियों में वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उतना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं ये कहूंगा कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस ना चाइना के पास है ना पाकिस्तान के पास जितना हमारे पास। सर, आपने इजराइल की बात करी कि 99 वॉर में, कारगिल वॉर के दौरान कैसे इजराइल ने हेल्प करी, कैसा जो स्पेशली जो एम्यूनिशन सपोर्ट दिया। अगर हम मॉडर्न डे फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस यूएसए के साथ भी उतने ही स्ट्रांग है, रशिया के साथ भी उतने ही स्ट्रांग है, एंड एट द वेरी सेम टाइम इजराइल के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन इंडिया का हमेशा से रहा है। तो आने वाले टाइम में आपके हिसाब से इंडिया का एक जो डिफेंसिव स्टांस है, स्पेशली प्रिपरेशन को लेके अगर देखें, या आर्मी अगर हम अपने सारे डिफेंस एसेट्स के एडवांसमेंट्स को लेकर देखें, तो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट पॉसिबली कर सकते हैं इन तीनों कंट्रीज से? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंडिया इज हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमारा जो सोवरेनिटी है उसके साथ कोई किसी भी तरह का बदलाव या किसी तरह का समझौता नहीं करते। हाँ, पहले का जो नॉन अलाइड मूवमेंट था, नाम और उसमें बड़ी बड़ी बातें होती थी, हम किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करते थे, उससे वी हैव कम वे फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, बिकॉज नॉन अलाइड मूवमेंट की वजह से वी लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। 62 का वॉर का जो लॉस है, when the army was not prepared, हमारे पास वेपन्स नहीं थे and we lost it, उससे we have come so far ahead। और ये बताऊं कि अभी हमारी जो पॉलिसी है, ये देखिए इंडिया कितना बैलेंस रखता है। हमारा एक तरफ इजराइल और ईरान है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बट इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद इजराइल एज वेल एज ईरान। इजराइल हैज बीन आवर आफ्टर रशिया, Israel probably is the most, after Russia, is the most trusted partner that defense partner that India has. Technologically they are very advanced। और दूसरी बात करूं रशिया की, तो रशिया has been a trusted partner even since the day of USSR। they are supplying regularly the defense hardware, they are regularly supplying the defense hardware to India since long। दूसरा कि रशिया ने they have always transferred the technology to us। MiG-21 की असेंबली लाइन HAL में ही थी। सो ये पक्का सोचने वाली बात है कि आज का जो मॉडर्न इंडिया है, अभी अमेरिका की बात करें, यूएस पे जब फिर मैं असेंबली लाइन या मेड इन इंडिया पे जाता हूँ। पहले मैं बताऊं कि अगर यूएस, तो यूएस हैज बीन is interested in supplying weapons to us, to supplying defense hardware to us। हम चीजें मंगा भी रहे हैं उनसे, हमने M5 राइफल्स मंगाई है, काफी सारी चीजें। बट जैसे कि यूएस और रशिया दे आर नॉट इन फ्रेंडली टर्म्स, और उनको एडवर्सरीज तो आप कह सकते हैं। इट्स नॉट दी कोल्ड वॉर एरिया की एरा की जब रशिया बहुत पावरफुल है। रशिया को मैं अभी आजकल चाइना का एक सेकंड फिडल की तरह देखता हूँ। बट ये पक्का है कि S-400 हमने ले लिया है, S-400 की बटालियंस आ चुकी है, 3 to 4 बटालियंस। स्टिल यूएस ने हमारे ऊपर जो रशिया से अगर आप कोई डिफेंस डील करते हो तो यूएस जो प्रतिबंध लगाता है वो अभी तक उन्होंने हमारे ऊपर लगाए नहीं है। तो इससे ये बात पूरी तरह साबित होती है कि हम कितना ज्यादा बैलेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में रख पा रहे हैं। इवन ये बताऊं कि ये माना जाता है कि इजराइल और अरब कंट्रीज दे हैव इश्यूज, मेजर इश्यूज सिंस लॉन्ग, और जो गाजा पट्टी पे जो चलता है हम सभी जानते हैं। बट स्टिल इंडिया हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इजराइल क्लोज टू दी अरब्स एंड यूएई। दुबई के प्रिंस के साथ अभी तो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि उनकी इजराइल की बैठक हुई है। दूसरा, मेरे ख्याल से कि यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इंडिया के इतने क्लोज रिलेशंस कभी नहीं रहे जितने अभी हैं। वहां पे मंदिर बन रहे हैं, वो लोग जब से प्रिंस सलमान आए हैं, तो यूएई इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। वो लोग जानते हैं कि एक कुछ समय बाद ऑयल इज गोइंग टू डाई अप।
so they are trying to rebuild their country in a different way. वो अपनी इकोनॉमी को भी अलग तरह से पुश कर रहे हैं. तो it's a great thing कि इस समय इंडिया उनके साथ खड़ा है. कट्टरपंथ इस्लाम को भी दूर हटाने की बात हो रही है. UAE is not at all supporting ever supported Pakistan since, मैं तो देख रहा हूँ पिछले 6-7 सालों में, पहले भी कभी नहीं, बट अभी एक बहुत पैराडिगम शिफ्ट देखा गया है कि नेबरिंग नेशंस के साथ हमारा जो रिलेशंस है, खासकर UAE के साथ. सो और दूसरा अभी डिफेंस हार्डवेयर पे जाते हैं कि अगर देखिए, परचेजिंग डिफेंस हार्डवेयर इज नॉट अ वेरी रिकमेंडेड थिंग. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. हम करते आए हैं. इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस हार्डवेयर, जो कि ये जो टैग है ना, ये इट्स अ शेमफुल टैग, और ये प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं वी वांट टू रिवर्ट इट. सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जब भी जो भी चीज हम खरीदते हैं, जैसे अभी AK-203 राइफल्स को अमेठी में बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई गई है, और उससे उस असेंबली लाइन से राइफल्स आने लगी है, अप्रूवल मिल चुका है उसको. सो आवर सोल्जर्स आर गोइंग टू बी पावर्ड विथ रशियन राइफल्स व्हिच आर मेड इन इंडिया ओनली. सो हम अभी जो भी डिफेंस डील कर रहे हैं, वी हैव अ क्लोज कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए और इंडिया में बनाइए. तो ये करने से, खासकर अभी जैसे हमारा जो कावेरी जेट इंजन है, अभी काफी सालों से वो असेंबली लाइन में है, हमने उससे काफी कुछ सीखा है, बट एक सक्सेसफुल जेट इंजन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली. सो हमने, इंडिया हैज गॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जहां तक मैं सुन रहा हूँ, फ्रांस वो हमारे जो कावेरी जेट इंजन है उसको अपग्रेड करने के लिए ये अपने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं. मैं सुन रहा हूँ कि उसमें कावेरी जेट इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में और उसको अपग्रेड करने के लिए उसमें से जो डिफेक्ट्स शायद जो लग रही होंगी उनको हटाने के लिए रोल्स रॉयस भी ऑन बोर्ड आ रहा है. सो इंडिया इज लुकिंग टू बिकम अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, नॉट द बिगेस्ट परचेजर ऑफ डिफेंस हार्डवेयर. और उसके लिए हमारे जितने फ्रेंडली नेशन है, वी आर having a very good rapport with them, or we are connecting with them in a way that the manufacturing should, most of the manufacturing should happen in India. That is what a prerequisite for any defense deal in India, other than the emergency deals. So it's a good thing, and we are progressing ahead. Yeah. Sir, 1971 में और 2021 में मैं एक सिमिलैरिटी ये बहुत देखता हूँ कि when in the times when Mrs. Indira Gandhi was the prime minister, and now when Mr. Modi is the prime minister, there has been a lot of focus on two major things. One is being strong, being defensive at the very same time, which is something which usually wouldn't go hand in hand. And as much as this is going on, also there is a very solid set of relations with almost all the major countries. So what would you say on the fact that as much as a war does a damage not only to the people and to the economy of the nations fighting, it also does a damage to the developing foreign policies of those nations? जी, देखिए, सबसे पहली बात की वॉर डज अ डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज है, जो ह्यूमन डैमेज है, वो चीजें जो लॉसेस हैं उनको कभी आप रिकवर नहीं कर सकते. बट विनिंग अ वॉर, बीइंग अग्रेसिव मिलिटरीली, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है. व्हेन यू विन अ वॉर, आपकी एक एंटायर अक्रॉस द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि दिस इज द कंट्री. मैं 71 के रेफरेंस में कह रहा हूँ कि दिस इज द कंट्री व्हिच हैज वॉन a decisive has made a decisive victory in a war. और उसके बाद अगर if you are economically stronger, because a country cannot fight a war, a country which doesn't have pennies to feed its people, that cannot fight a war. So सबसे पहली बात है कि economically stronger India will always be able to have a great impact across the world. हमारा जो रिस्पेक्ट है, चाहे हमारा जो अगर आप ये कहें कि डिप्लोमेटिकली अगर हम स्ट्रांग दिखते हैं, वो हम तभी दिखेंगे, हम बातें चाहे कितनी करें, बट until unless you are militarily strong, you are able to display it in a manner by eliminating your enemies, by just like जैसे कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में हमने आतंकवाद को खत्म किया, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमने स्टेप्स लिए. अभी एनिमीज
हमारा दुश्मन है वो जानता है। दो इम्पैक्ट आते हैं इसके। जब इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चाहे हमने जो आतंकवादियों के ऊपर इतनी बड़ी स्ट्राइक्स करी, दो स्ट्राइक्स करी, उसका इम्पैक्ट सबसे पहला एनिमी के ऊपर ही आता है कि दे नो, ये बहुत बड़ा डिटरेंस है कि आप भारत को हल्के में नहीं ले सकते। और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है, ये गवर्नमेंट के लिए भी मैसेज है कि अगर आपने एक बार ये स्टेप लिया है तो दूसरी बार भी अगर टेरर अटैक होगा तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो नॉट स्टेप डाउन, गवर्नमेंट विल नेवर स्टेप डाउन। बट ये बहुत बड़ा एक डायलेमा है और ये दुश्मन के लिए भी है। वो जानते हैं कि देयर विल बी प्यूरिटिव एक्शंस। द सेम वाज विथ मिसेस इंदिरा गांधी कि पाकिस्तान, उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया, उनके साथ जो किया, उसके बाद में अगर आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतनी बड़ी आई तो देयर वर प्यूरिटिव एक्शंस फॉर पाकिस्तान आल्सो। और हम ये सब अपनी मर्यादा में रह के एक हमारा जो एक भारत के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग अ कंट्री लाइक इंडिया, हम उस प्रिंसिपल्स में रह के उनको फॉलो करके what we do is what we do, and this is a very strong message that goes to the adversaries also, to our friends also, to the entire world also, that there is a country where there is some decisive leadership, and there is this country is also economically strong and powerful. Sir, actually this reminds me of one of the quotes by Sir Sam Manekshaw. Like, I won't say that quote right now on the public forum, respecting the forum and such a platform it is for people like us. But at the very same time, Sir Sam Manekshaw's quote on Mrs. Gandhi, especially when she released 93,000 prisoner of wars. So what do you think such a move can throw an impact in how many possible numerous different ways on a country's foreign policy? मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। सी, आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन सिंस लॉन्ग, और मुझे नहीं, ये इंडियन मिलिट्री को, इवन दी रूलिंग पार्टी उस समय जो थी, उनको ये हमेशा पूछा गया कि आपने वो 93,000 POWs क्यों छोड़ दिए। उस पे ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। एवरीबडी नोज कि शिमला में क्या हुआ, किस तरह बेनजीर के से अट्रैक्ट होके उसको अपनी, शायद ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट उसमें अपनी फ्यूचर बहू शायद दिख रही थी उन्हें, या अपनी बेटी जैसी दिख रही थी। व्हाट हैपन कि उसकी चार्म में आ गए। बहुत सारी थियरीज हैं, बट जो हुआ शिमला में, और भुट्टो ने कहा था कि इंदिरा जी आप मुझ पे भरोसा रखिए, और इस भरोसे को उसने पीठ में छुरा भोंक के खत्म किया। और हमारे 55 जो पीपल हैं जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, आज भी वो मिसिंग इन एक्शन है। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है, और उसके प्रूफ मिल चुके हैं कि दिस पीपल वेर लॉज्ड इन पाकिस्तान जेल, उनके नाम फोर्ज कर दिए गए। इवन टाइम मैगजीन के ऊपर फोटोज भी आई हैं हमारे POWs की, बट पाकिस्तान ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हमने इतनी ज्यादा दरियादिली दिखाई, 93,000 लोगों को छोड़ दिया, और वहां दुश्मन ने यह कहा कि आप मुझ पे भरोसा रखिए। तो इन लोगों पे भरोसा करना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात ये, कभी भी। ये इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग। अभी अगर इस चीज को मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखा जाए कि अगर हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंशन को जब से जनरल रावत आए, तो देयर वर सो मेनी पीपल जो कि हु वर थ्रोइंग ब्रिकबैक्स एट हिम कि ये एक ऐसा जनरल है जो कि उन्हें पॉलिटिकल लग रहा था। ही वाज वेरी ओवरटली पॉजिटिव एंड एक्सप्रेसिव इन हिज डेमोनर, और ऐसा जनरल इंडिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। लोगों को दिक्कत थी उनसे कि ये इतना क्यों बोलते हैं। एक सो कॉल्ड नेता ने तो ये तक कह दिया कि ये गली का गुंडा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वो जब 93,000 को छोड़ दिया गया तब कुछ नहीं बोला। बट आपके पास एक ऐसा जनरल है, अ जनरल हु वाज इन लाइन विद द गवर्नमेंट। See, military is what? Military is extension of your political dispensation. हम इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब एक गवर्नमेंट को चुन के भेजते हैं, तब गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल डिसीजन लेती है कि मिलिट्री ये एक्शन लेगी। मिलिट्री कैन नॉट टेक अ सुमोटो एक्शन। मिलिट्री जाके अपनी मर्जी से एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती। अगर हम वो करते हैं तो हम गद्दारी करते हैं अपने देश से। तो इफ यू हैव अ पर्सन हु इज सो मच कम्युनिकेटिव विद द गवर्नमेंट, तो the military gets what it wants. हमने जितने में ये कई बार कहा है कि हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर की हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट थी,
इवन जो बॉर्डरिंग एरियाज को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट थी, इन सभी रिक्वायरमेंट्स में ये गवर्नमेंट खरी इसलिए नहीं उतरी है कि इनका इंटेंट, सिर्फ केवल इनका इंटेंट है, बिकॉज कि वो चीजें खासकर कोविड के टाइम पे जो इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट का जो पावर्स आर्म फोर्सेस को दिए गए, ये मैं अगर लिस्ट बनाने भेजूं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट सिंस द डे जनरल रावत वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ till the day he was his demise, he was so much positively connected with the government, just as we all know that our present NSA Mr. Ajit Doval is also the present political dispensation has so much of faith on Mr. Ajit Doval as well as General Bipin Rawat. वो faith गवर्नमेंट का जब फेथ रहता है तो पॉलिटिकल डिसीजंस में, खासकर के ऐसे डिसीजंस जिसमें कि यू नीड टू कनेक्ट द मिलिट्री, जैसे कि वो 93,000 को छोड़ने की बात हो, चाहे चाइना के साथ जो हमारा नेगोशिएशंस अभी चल रहा है उसकी बात हो, उसमें मिलिट्री वाज इन्वॉल्व। वहां पे क्या हुआ, देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिट्री ड्यूरिंग, जबकि आपने 93,000 को छोड़ दिया। शिमला में जनरल साहब को क्यों नहीं ले जाया गया, क्यों फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब को शिमला के उस बैठक में ले जाया नहीं गया? आपने हारे हुए दुश्मन को ऐसे ही छोड़ दिया, आपने बांग्लादेश को ऐसे ही छोड़ दिया, ना उसका डिफेंस अपने पास रखा, ना उसका कम्युनिकेशन अपने पास रखा, ना रेलवे अपने पास रखा। सो जब पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है, जो लीडरशिप है, उनको जब मिलिट्री पे भरोसा आता है, जब दोनों एक ही लाइन में हो, डिसीजन जब उन्हें पूरा भरोसा हो, आंख बंद करके भरोसा हो, तो जो 71 में जो गलतियां हुई आफ्टर द वॉर, जो कहते हैं ना कि जो हमने लड़के जीता वो आपने टेबल पे खो दिया, ये नहीं होता। हमने स्कर्दू छोड़ दिया, हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी, ये सब नहीं होता अगर उस समय मिलिट्री को साथ में लिया गया होता। देयर इज अ डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, उसका सहारा ही नहीं लिया गया। वो गई अपने डिप्लोमेट्स के साथ और एक वन-ऑन-वन मीटिंग भुट्टो के साथ करके, जिस ऐसी चीजें जिनके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, वो छोड़ के आ गई टेबल पे। इट वाज अ रॉन्ग थिंग। अगर जनरल रावत साहब के आने से जो हुआ है वो यही पॉजिटिव हुआ है कि गवर्नमेंट को उन पे बहुत ज्यादा फेथ है, और हर एक डिप्लोमेटिक डिसीजन में जिसमें डिफेंस इन्वॉल्व हो, उन्हें साथ में रखा गया है। उन्हें साथ में रखा गया है, इसका मतलब कि एंटायर मिलिट्री, 15 लाख की आर्मी हो, चाहे 1.5 लाख की एयरफोर्स हो, और 60,000 की नेवी हो, वी ऑल आर टुगेदर। सो ये एक जॉइंटनेस की जो बात है ना, कि हम जॉइंटनेस डेवलप कर रहे हैं, जॉइंटनेस का डॉक्ट्रिन है, जॉइंटनेस बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें ये सब चीज आती है। वो चीजें अगर उस समय होती तो शायद हम इतना बड़ा लॉस नहीं होता। सर, जैसे अभी हमने जनरल बिपिन रावत की बात करी, हमने सर साम मानेकशॉ की बात करी, तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि एक वो वक्त था कि जब एक ऐसा गोरखा था जिसने एक बहुत अच्छी शुरुआत दी, और फिर एक गोरखा ऐसा आया जिसने कह सकते हैं कि आखिरी सांस तक सब कुछ किया देश के लिए, क्योंकि 40-42 साल देश की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। तो आने वाले टाइम में क्या शायद एक बार को मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होगा कि एक कोई और ऐसा गोरखा आए जो इसको आगे लेके जाए, तो इस पे आपका क्या ख्याल है? कहते ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथी, तुम्हारे हवाले वतन साथी। हमारे देश ने हमेशा ऐसे वीर सपूत जने हैं, हमारी देश की माओ ने हमेशा ऐसे वीर सपूत देश को दिए हैं, जो कि हमेशा से देश की सेवा करते रहे हैं। ये बात है कि जो जनरल सैम मानेकशॉ जो थे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऐसा सोल्जर भारत के इतिहास में हमने आज तक नहीं देखा। ये बात अलग है कि CDS जनरल बिपिन रावत हैज बीन अ लीजेंड। मैं हमेशा उनको सैल्यूट करता हूं, उनके देश प्रेम को। उन्होंने देश के लिए, खास करके फौज के लिए जो किया, अपनी जवानी देश को दी, अपना अंतिम सांस तक देश के लिए लड़े। तो जो उन्होंने किया है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। जॉइंटनेस में उनका जो रोल रहा, गवर्नमेंट के साथ जो कोहेशन से काम हुआ, सभी इंटर एजेंसीज, इंटर सर्विसेज जो कोहेशन हुआ, वो जहां तक पहुंचा है, मिस्टर अजीत डोवाल और जनरल बिपिन रावत और ये पूरी टीम ने जो काम किया है, NTRO, DRDO, ISRO, सभी एवरीबडी वाज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये जॉइंटनेस इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का विजन है
ये अजित डोभाल साहब का विजन है, ये जनरल रावत साहब का विजन था। और ये मैं पक्का मानता हूं कि हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है। उन दो लीजेंड्स की जिनकी हमने बात की, उनकी जगह को, खाली जगह को हम कभी नहीं भर सकते। हमारे देश में, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इट्स बिग वैक्यूम, बट उस इतने बड़े शूज को ना कोई फिल नहीं कर सकता, ये पक्का है। बट इस देश ने अच्छे सैनिक हमेशा दिए हैं, अच्छे लीडर्स हमेशा दिए हैं। और ये नहीं कि केवल उत्तराखंड से, देश के हर एक कोने से, चाहे जनरल थिमैया की बात हो, चाहे जनरल सैम मानेकशॉ हु वाज अ पारसी, या चाहे जनरल रावत जो कि उत्तराखंड से थे, भारत ने हर एक कोने से, हर एक जगह से, भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर। सर आई थिंक आपका ऑडियो मिस हो रहा है। सॉरी वी गॉट डिस्कनेक्टेड। तो भारत ने हमेशा ही एक लेजेंडरी सोल्जर्स को जन्म दिया है, भारत की माओ ने, और हम उनके शूज को तो मैं फिर से कहूंगा भर नहीं सकते। बट ये जरूर है कि हम आशा रखते हैं कि इतने ही अच्छे ऑफिसर्स आते रहेंगे और गवर्नमेंट्स भी मिलिट्री के साथ कोएशन में काम करेगी, ताकि हम हमेशा 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 के लिए भारत का झंडा ऊंचा रख सकें। That was a really insightful session, sir. It was a real honor and a real pleasure to have interacted with such an amazing individual like you. And I personally feel blessed that I got a chance to moderate this session. Thank you so very much for being with us today. Thank you, sir. Thank you, Chaitanya ji. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you.